Welcome to BioRatna. Dear students, today's session is very special. Very special because it is going to give you a direction. It is going to provide you sure step pointers to how to reach to your goal. It is not just studies, students. It is not just about studies. How to do the studies, that also we are going to discuss. But there are other guidelines. There are other points very important which makes all the difference, without which your work may remain a hard work without giving you the results. At this stage, all the 11th class students, they are on a spree to watch many videos about how to clear the NEET in 2 years. I hope that this video provides you all the points, you are satisfied and your time is saved. Before we start, I ask you one question. Do you really want to be a doctor? If yes, then here you are. Another thing, have faith in yourself. Have faith in yourself that you can do it. Passion and faith. Students, these are the two strong pillars. This will help you. This journey is going to be difficult. But it is going to be interesting and it is going to be rewarding only if you have the passion and you have the faith. The faith in your aim, the faith in yourself and the faith in your coaches. All are important. The different pillars which will help you to not to collapse under the stress. आप थकोगे लेकिन टूटोगे नहीं. When you have this faith in you and the passion is really there. Let us start with the first point. पूरे 2 साल बच्चे 11th as well as 12th एक सेम साइकिल, सेम क्वेश्चन के अंदर घूमते रहते हैं. उन्हें अजीब ढंग से छटपटाते हुए हमने देखा है. What they do? The school, you need to clear all your concepts first, students. After that, it is your journey. You need to have the guidance from those who are at it for long years with their experience. They know what to do and what not to do. If it is your school teachers are good, then your journey should stop there only. आप स्कूल में पढ़ते हो, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हो, घर आते हो, रेस्ट लेते हो और नेक्स्ट हाफ डे यू आर स्टडिंग. उन्हें उसके बियॉन्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पड़ती है. देन दे गो फॉर कोचिंग. के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द सेल्फ स्टडी, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. एंड इन द कोचिंग itself, what is the guarantee that you are going to get all the 3 teachers equally good? What you need is to clear your concept. I am reaching out to those my students who don't have the resources for coaching. कि आप जब वीडियो लेक्चर्स खोल के आप बैठ गए, should be the best judge. You should be the best judge which what you are opting for. आपको देखना है कि आप कौन सा चैनल सिलेक्ट कर रहे हो. उसमें आप टाइम दे लीजिए. आप हर चैनल का थोड़ा एक बार देख लीजिए और देख लीजिए कि कौन सा आपके लिए 100% अच्छा रहेगा. वही है आपका पहला साथी. अब आप खुद पे आ जाइए. यू आर योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स. फायर्ड विथ योर पैशन एंड हैविंग द फेथ इन यू. नाउ यू स्टार्ट कैसे करते हैं बच्चे? आपकी जो कोई भी पढ़ाई हो, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 2 मेजर सब्जेक्ट ले रहे हो आप, और साथ में इन बिटवीन यू एडजस्ट. 2 ही साल में आप क्लियर कर रहे हो ना. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. 2 साल में आप क्लियर कर रहे हो. 11 से जो बोल रही हूँ उसे फॉलो कीजिए. सो यू सिलेक्ट 2 सब्जेक्ट्स, 2 मेजर सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो. और इन बिटवीन अगर आपको फ्रेश होना है, नहीं थोड़े ये डिफ़िकल्ट लग रहे हैं पढ़ने, देन यू गो फॉर योर इंग्लिश एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. वो जो इन बिटवीन के ब्रेक में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट पढ़ते जाओगे ना,
उसी में आपकी पूरी पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई इंग्लिश की और पीएड की हो जाएगी। बट यू शुड बी रेगुलर इन दैट ऑल्सो कि अच्छा अब ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा ये मैंने अभी पढ़ लिया। नाउ कम टू योर 2 मेजर सब्जेक्ट्स। वहीं 2 मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। बुक निकाल लिया, सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, पढ़ने बैठ गए, नहीं हो सकता है। आप क्या करने वाले हो, एक दिन पहले, मतलब आपकी पढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है एक दिन पहले, बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर गोइंग टू बेड डिसाइड विच 2 सब्जेक्ट्स, विच चैप्टर एंड विच टॉपिक। टॉपिक भी आपका डिसाइड होना चाहिए, उसमें बुक मार्क लगाइए, आराम से अपने टेबल पे रख दीजिए, उसके बाद सोने जाइए, उसके बाद सोने के लिए जाइए। इफ एज आई सेड, इनडिसीजन, गिल्ट, दिस थिंग्स किल यू। जब आप नेक्स्ट डे यू आर जस्ट डिसाइडिंग दिस subject or this subject, this I find more difficult, this I find, this also I find difficult, this I have to do, this I have to do, that somewhere आपके strength को कम करता है बच्चा। आपके steps sure short होने चाहिए, उसके लिए आपको खुद को डेवलप करना है, खुद की आदतें बनानी है। only then you are going to take sure step forward। आपने अपना सब्जेक्ट क्या, टॉपिक भी पहले से डिसाइड कर लिया, बुक मार्क लगा दिया, आराम से आपने अपने स्टडी टेबल पे रख दिया है। जस्ट ओपन द बुक एंड स्टार्ट योर स्टडीज। वन मोर थिंग यू विल डू व्हाइल यू गो टू स्लीप इज, आप क्या करते हो, आपने उस दिन में पढ़ा होगा, उस बुक को और अपने मोबाइल को नहीं, एक टॉर्च को अपने पास बेड पिलो के नीचे रख के सो जाते हो। आप जैसे सवेरे नींद में हो ना, उस समय आप सोच रहे हो अभी बहुत नींद आ रही है, अभी कैसे उठे। एक स्टेज होता है जब आप तुरंत उठ नहीं पाते हो, उस समय आपको क्या करना है, यू गो ऑन, आँख बंद रखिए ना, आराम से बंद रखिए। आप उसके बाद यू नो स्टूडेंट्स, आफ्टर 16 years गैप आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम एडमिशन लेने गए 16 years के बाद में, तो यूनिवर्सिटी में हमसे कहा गया वी डोंट हैव एनी एग्जाम्पल कि 16 years के बाद कोई पास करता हो, एंड दिस इज साइंस सब्जेक्ट। आई सेड कि हम कहना चाहते थे कि हम यूनिवर्सिटी में मतलब अच्छा करेंगे। आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते थे। उसे हमने मेलो डाउन करके कहा कि हम यूनिवर्सिटी में 3 टॉपर्स में हम ज़रूर आएंगे, एंड आई डिड। एंड वन मोर थिंग आई सेड कि हम जो आज तक का एमएससी का पोस्ट ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड है ज़ूलॉजी का, वो ब्रेक करेंगे यूनिवर्सिटी का, एंड आई डिड। I said that I will be within the 3 toppers, लेकिन हमें दिल में था कि हम तो टॉप करेंगे। I was second topper. I broke the record. Of course I broke the record, but I was second topper. And I utilized all the these points which I am talking about. I implemented them with my when I started the teaching job and with the students, and the beautiful journey they had, their growth, seeing that gave me such immense joy that I want to share that joy with you, and I want to see that beautiful smile on your face too. So when you are sleeping, at that time you are mentally revising the points which you have studied in the daytime. उसमें जहाँ भी आप अटके, ये आपकी इतनी अच्छी रिवीजन हो रही है कि जब आप लिखने बैठोगे, आपको जब आप ऐसे आँख बंद करके रिवाइज कर रहे हो ना, तो एक्चुअली आप अपनी सारी एनसीईआरटी को ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट, जब पेपर लिखने बैठते हो, एट दैट टाइम यू विल फाइंड कि यू विल सी दैट जेरोक्स कॉपी ऑफ एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे लगेगा कि दिख रहा है। एंड देन जहाँ आप अटकते हो कि दिस पॉइंट, सम पॉइंट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, सेम टाइम यू विल स्विच ऑन योर टॉर्च एंड यू विल सी द पॉइंट। भी बात के लिए मत रखिए, देन एंड देयर उसको देख लिया, ख़त्म किया, करते करते यू यूटिलाइज दैट पीरियड, और आधे घंटे से पहले आप फ्रेश हो जाते हो, आप उठ जाते हो। वैसे रिकॉल करते करते ऐसे आप सोए रहते तो आपको बहुत समय लगता। नाउ यू आर फ्रेश, यू गेट अप,
आप अपने मॉर्निंग रूटीन से निपट लीजिए और आपकी 2 बुक्स आपके लिए वेट कर रही है, वहाँ आप बैठ जाइए पढ़ने। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट आर यू थिंकिंग? नीट क्लियर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? नीट क्लियर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? नो। Tell yourself, convince yourself that you are going to clear it. Just not clear it, you are going to get good rank. You are going to get good rank. How you can tell yourself? Write on a piece of paper that I am going to top. If not top, I am going to be in 100 within 100th rank or within 1000th rank. उसके बाद नहीं। इतना विश्वास रखिए आप खुद पे, जितना खुद को छोटा समझोगे उतना आपका रैंक नीचे जाने वाला है। कैसे इसको ऊपर लाना है, कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। इट इज़ नॉट जस्ट विश, इट इज़ नॉट जस्ट विश, वर्क ऑन इट। तो पुट वन पेपर बिहाइंड योर स्टडी, ऑन द वॉल बिहाइंड योर स्टडी टेबल। आते जाते ये पूरे 2 साल आप उसे देखने वाले हो। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, यू आर इन क्लास 11th नाउ। 11th का कोर्स बच्चों, क्लास 10th की जो पढ़ाई थी ना, इट वॉज नथिंग। क्लास 11th, when students come to 11th, they are so afraid कि what is this? So much of information, but students think like this, don't think like that. Think that this, you are a mature student, you are in class 11th now and you have the most developed brain. हम आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो छोटे हैं, सबसे अच्छा ब्रेन आपका है और now you are ready to get as much information as possible. So and here in 11th you are going to get that khazana. All this is waiting for you to explore. The only thing is don't be afraid and go on asking questions. Ask. आप तो 11th के कोर्स से डरिए नहीं, लेकिन पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। Continuously you will ask. I will tell you it was I think 2007. वो उस समय में 2005 के बाद NCERT का सिलेबस चेंज हुआ था ना 11th 12th, and then there was one orientation program of the teachers in Bombay. तो उस समय NCERT से लोग आए हुए थे and they were telling us कि what is the perspective, हमें कैसे बच्चों को समझाना है, क्या मोटो है NCERT का, ऐसा क्यों किया गया, like that. So when he was explaining the things also, discussing many topics too and asking कि आप लोगों का क्या सोचना है कि ये जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसमें give your opinions also. While discussing the things, when I saw one expert in front of me, there were so many educationists sitting there. What question I asked, you know? हमने पूछा कि वो जो जेनेटिक्स में ना नाइट्रोजन बेस हम पढ़ते हैं ना, तो नाइट्रोजन बेस, my question was, sir, what is nitrogen base? Why we call nitrogen base a nitrogen base? You know, मतलब नाइट्रोजन, इतने सारे लोगों में ये क्वेश्चन पूछने में हमें शर्म नहीं आई। हम ऐसे गैदरिंग में क्या करते हैं कि सबका लेवल भी हाई ही होता है, सो द क्वेश्चंस आर ऑफ दैट लेवल। उसमें और हमें ये है, जो हम जानते हैं हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते अगर हमें मौका मिले तो हम उसे तुरंत पूछेंगे, वहीं पूछेंगे। हमें खुद को इनरिच करना है, आपको खुद को इनरिच करना है। आपका ऐसा होना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझे तो पता है, मुझे जो नहीं पता है वो मैं पूछूंगा और मैं क्या हूँ ये तो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो आप खुद को बिल्ड करते जरिए, गो ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्लास 11। वहीं आपके पूरे नर्सरी से लेके 12th तक के क्लास स्कूल टाइम का गोल्डन पीरियड है बच्चा, नॉट इवन 12th, 11th। The confidence it is going to give you when you master it properly, उसका कोई मोल नहीं है। It is going to help you throughout your life. It will build so many characters in you. Now come to your NCERT.
एनसीईआरटी अभी बायो के लिए आप कहते हो ना कि बायो से करीब 98-99% तो नीट में यहीं आता है, 100% तो सीबीएसई आपके 12th में यहीं आना है। Students, even that 1%, it is not out of NCERT. Try to understand. ये एक चीज़ समझ लो और फिर हर दिन जैसे पढ़ाई करोगे आपको ये समझ में रहेगा कि उस 1% की भी तैयारी आपने कर ली है। वो गाइडेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चे। व्हाट यू से कि ये 1% जो है बाहर से आ सकता है, दैट विल बी गाइडेड क्वेश्चन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल थे, अभी लास्ट वीक में तो बायो रत्ना ने 11th का स्टार्ट किया, सो कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड के वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। तो लिविंग वर्ल्ड में एक सेंटेंस है आपके एनसीईआरटी में कि फ्रैगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन फिलामेंटस एल्गी। This fragmentation takes place in filamentous algae and fungi and protonema etc. ना when you are given specifically आपको नहीं देके आपको बोला गया है filamentous algae, तो क्या आपने सर्च किया कि filamentous algae मतलब कौन? filamentous algae में आप तुरंत समझ लेते हो क्या स्पाइरोगैरा। क्या स्पाइरोगैरा के अलावा और कोई एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ाया गया है filamentous algae का? फिलामेंटस एल्गी आप नेक्स्ट ही चैप्टर में आप पढ़ोगे, यूलोथ्रिक्स को पढ़ोगे। सो यू हैव टू, जहाँ आपको एनसीईआरटी ने कहीं लाके एक ऐसा जगह पे रखा कि नाउ ही वांट्स यू टू बी, या स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट नहीं तो टीचर, वो उस चीज़ को उठा के उसे एक्सप्लोर करे। ऑल द टाइम 99% अगर आपको रेडीमेड स्पून फीडिंग हो रही है तो क्या 1% आप थोड़ा सा एक बाहर स्टेप लेके पढ़ नहीं सकते हो? अच्छा, सो लेट अस सी हाउ टू स्टडी द एनसीईआरटी। दिस इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी डीप स्टडी, लेकिन एनसीईआरटी का एक पूरा सार देते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि एनसीईआरटी जैसे आप लेके बैठ गए, पहले आप स्कूल से हो, वीडियो लेक्चर से हो, कोचिंग से हो, जो आपने पढ़ लिया, अब उसको आप निकाल के एनसीईआरटी में बैठ जाते हो। देयर इज़ वन पेन इन योर हैंड। आपके एक साइड में फ्लैश कार्ड्स रखते हो, दूसरे साइड में आप अपनी स्टिकी नोट्स रखते हो। एवरी टाइम आई टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लैश कार्ड्स। एनसीईआरटी अगर आपकी शिप है तो फ्लैश कार्ड्स आपका सेविंग जैकेट है, लाइफ सेविंग जैकेट है। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ एनसीईआरटी टेकन आउट फ्रॉम एनसीईआरटी जो आपको हर हालत में मदद करेगा। उसके बगैर आप इतने लॉस्ट फील करोगे। यू मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स नहीं, जो बच्चा फ्लैश कार्ड बना रहा है, इक्वल इंटेलिजेंट बच्चे जो फ्लैश कार्ड बना रहा है और जो नहीं बना रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क जाने वाला है। फ्लैश कार्ड्स में आप क्या करते हो, एनसीईआरटी ले लिया अपनी, और जैसे एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाते हो। इन दैट सेम पेज यू हैव गॉट ऑल योर एमसीक्यूज। समझना, कंसेप्ट क्लियरेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट हैज़ बीन डन। लेकिन यहाँ फिर आप खुद से भी समझते जाते हो, और फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वन टॉपिक कंप्लीटेड, नॉट वन चैप्टर, वन टॉपिक कंप्लीटेड, एंड नाउ यू टेक द मेन पॉइंट्स ऑन वन पेज ऑफ फ्लैश कार्ड। वहाँ बहुत सारा चीज़ लिख के आप जंबल अप नहीं कर सकते हो। एक चैप्टर का एक बंच ऑफ फ्लैश कार्ड्स आप रखिए। आई ऑलवेज प्रेफर गो फॉर द पेपर वंस, माई स्टूडेंट्स दे ऑल्सो गो फॉर डिजिटल वंस। तो वो फ्लैश कार्ड का बंच आपने रख लिया, उसमें आप एक एक पेज में वो फ्लैश कार्ड साइज शुड बी सच कि वो आपके पॉकेट में आ जाए ना, एंड यू आर राइटिंग ओनली 4-5 पॉइंट्स। दिस फ्लैश कार्ड्स आपके ऐसे जब आप एनसीईआरटी, आप जब स्टडी टेबल पे हो, दैट एट दैट टाइम एनसीईआरटी इज विथ यू। जब आप स्टडी टेबल पे नहीं हो, जब आप को लगता है कि द टाइम मैं वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं यहाँ से कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ से स्कूल के लिए जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, एट दैट टाइम आप एनसीईआरटी कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते हो, बट एट दैट टाइम वो फ्लैश कार्ड्स लेके आप कंप्लीट, और वो एक के बाद एक पॉइंट करोगे ना। You don't need extra time for revision, you understand that?
रिविजन इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आपने आज पढ़ लिया, यू आर गोइंग टू स्टडी 100 चैप्टर्स इन दिस 2 years। तो आपको लगता है कि आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा वो आपको याद रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फॉरगेट कंप्लीट 11th स्टडी इवन दे आर इन क्लास 12th। भूल जाते हैं, इसीलिए ड्रॉप लेना पड़ता है। तो ये फ्लैश कार्ड्स जो है 11th में भी आप 11th के फ्लैश कार्ड्स रखते जाते हो व्हेन यू मूव फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 2। तो नाउ योर चैप्टर 1 इज इन योर फ्लैश कार्ड, चैप्टर 2 आप पढ़ते जा रहे हो, और फ्लैश कार्ड्स आप इन बिटवीन जब आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या आप डिसाइड कर लेते हो कि यहाँ मैं 15 मिनट माई ट्रैवलिंग टाइम इज देयर, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू रीड टेक आउट माई फ्लैश कार्ड्स। तो आप 12th में भी 11th नहीं भूलते हो बच्चा, 11th में भी आप शुरू के चैप्टर्स नहीं भूलते हो। फ्लैश कार्ड नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्लैश कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिकी नोट्स में आप क्या करते हो, ऐसे टेबल्स है, साइकिल्स है, जिसे अननेसेसरी बैठ के रटने में आपको टाइम यूज़ नहीं करना है। फ्लैश कार्ड्स में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए हैं, ये टॉपिक, इसके ये पॉइंट्स है, इस तरह से आपने याद किया। और जो बड़े बड़े टेबल्स हैं, साइकिल्स है, उसे आपने स्टिकी नोट्स में लगा लगा के रख दिए। तो आप कभी ऐसे खड़े खड़े उसमें देखते हो और वो तुरंत एक एक साइकिल याद कर लेते हो। तो व्हाटएवर मतलब जो फ्लैश कार्ड और जो स्टिकी नोट्स आपने आज बनाए, विद इन 15 days यू हैव टू कंप्लीट इट। 15 दिन में इसे कंप्लीट करना है। आई टोल्ड यू कि आई एम गोइंग टू गिव यू the points, the guidelines for each every moment of your these 2 years। जब आप कभी भी लॉस्ट फील नहीं करो, आपको पता है कि हर समय में मुझे क्या करना है, और वो आपको कभी भी नहीं पता रहेगा अगर आप फ्लैश कार्ड्स और ये स्टिकी नोट्स नहीं यूज़ करते हो। When you are with NCERT, तो you are with NCERT. When you are with your coaches, then you are with your coaches. जब आपके हाथ में NCERT नहीं है, जब आपके सामने आपके टीचर्स नहीं है, at that time you feel lost। 10 तरह की बातें सोचते हो, don't think, work, don't think। तो उस समय आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, that is your flash card। Think of flash cards as everything। मतलब NCERT का पूरा चीज़ आपके फ्लैश कार्ड में आ गया, और वो इस तरह से आपको मदद करने वाला है। NCERT पढ़ते समय एक और चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं बच्चे, नॉट जस्ट द साइंस पार्ट, नॉट जस्ट द साइंस पार्ट। आप ये देखते हो कि वो सेंटेंस में उन्होंने इन यूज़ किया है, फ्रॉम यूज़ किया है, इनसाइड यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ क्वेश्चन कि द स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल्स आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनटू और आउट, टोटल डिफरेंट हो गया। इस तरह से उसे चेंज करके पूछा जाता है आपके नीट में। तो बच्चा क्या करता है, उसने जो पढ़ा, बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, लेकिन पढ़ते समय भी तो देखो, पढ़ते समय अपने दिमाग में बैठा लो कि ये क्या था, आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आप क्लियर रखो। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चन। नाउ दैट यू हैव, उतना ही वही स्पीड रखिए आप, वो 2 सब्जेक्ट और वो चीज़ें जो आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाई गई है। नाउ on that topic you take topic wise MCQs। don't immediately go for PYQs and feel lost। तुरंत आप PYQ उठाओगे, that is a पूरा एक जंगल है। क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट चैप्टर्स, यू जस्ट जो पढ़ लिया उसी टॉपिक का, यू हैव कीप वन गुड बुक विथ यू, उसमें से आप टॉपिक वाइज वो सारे MCQs आप याद कर लीजिए, उसके बाद आप PYQs के लिए जाएंगे। देन योर स्टडी इज कंप्लीट। तो वो जो 2 सब्जेक्ट लिए थे आपने उसको NCERT में पढ़ा, फ्लैश कार्ड, तुरंत फ्लैश कार्ड और स्टिकी नोट्स, दे डोंट टेक टाइम, इवन इफ दे टेक टाइम, विदाउट डूइंग देम योर होल थिंग इज गोइंग वेस्ट। उनके हेल्प से, रिविजन के बगैर आपके दिमाग में वो रिटेन नहीं होने वाला है। आफ्टर 7 days इट इज गोइंग टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम योर ब्रेन। हर बार बुक निकाल के रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता।
तो आपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए, स्टिकी नोट्स बना लिए। आफ्टर दैट यू गो फॉर MCQs फ्रॉम अ गुड बुक, देन यू गो फॉर PYQs। आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई। और जितना टाइम आपने दिया है, इफ़ यू थिंक कि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आपका दूसरा सब्जेक्ट के लिए अभी टाइम कम रह गया है, इमीडिएटली यू स्विच टू दैट सब्जेक्ट। डोंट डू इट, डोंट डू इट, नहीं तो आपको पहला पढ़ा हुआ भी टोटल वेस्ट हो गया। अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व ऑल द MCQs ऑन दैट टॉपिक, आपने समझा ही नहीं कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पढ़ना अलग चीज़ है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस अलग होते हैं बच्चे। आपको हर MCQs को कंप्लीट करना है और दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाना है उस समय। भले इवन इफ यू आर गोइंग टू डिवोट लेस टाइम टू इट, बट क्वालिटी टाइम टू दैट सेकेंड सब्जेक्ट, और फिर उसे दूसरे दिन एडजस्ट करते हो। इस दूसरे दिन एडजस्ट से वी कम टू अ टाइम टेबल। टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल। फिर ऐसे कहते हैं ना कि टाइम टेबल, वो टाइम टेबल बना के फ़ायदा क्या, टाइम टेबल तो चेंज ही होता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टाइम टेबल। व्हाट टाइम टेबल डज टू यू, आपको वो एक ओवरव्यू देता है। वो आपको बताता है कि इस स्पीड से आप जो पढ़ रहे हो, तो जैसे आप आज ये 2 टॉपिक कर पा रहे हो, तो दूसरे दिन के लिए उतने आपने लिखे, तो आप समझ में आएगा कि क्या मैं इसे कंप्लीट समय पे कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। अदरवाइज आप बस पढ़ते जाते हो, रिलैक्स रहते हो और एग्जाम से पहले सोचते हो कि अरे कंप्लीट ही नहीं हुआ। दैट टाइम टेबल इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट विजन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइम टेबल, दैट यू कैन चेंज इट, यू मस्ट चेंज इट। जैसे आपने 2 सब्जेक्ट उठाए, उसमें से एक में आपको ज़्यादा समय गया, दूसरा आप आधा ही कंप्लीट कर पाए, तो उसे आप वैसा ही आधा नहीं किया हुआ छोड़ देते हो। एक अच्छे से लाइन लगा लेते हो बच्चे, अच्छे से उसे मार्क कर लेते हो, ताकि दूसरा ऐसा दिन आएगा, दूसरा ऐसा उसे रेड मार्क कर देते हो। दूसरा ऐसा दिन आएगा, on that day you will complete your whatever you desire to do on that day, that you will be able to complete much earlier and you will have more time। उस समय में आप इसे उठा के एडजस्ट कर दोगे, वहाँ पे उस रेड के ऊपर में एक टिक मार्क लगा दोगे कि ये मैंने कर लिया। तो आपने उसको चेंज किया, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप उसे चेंज करते हो, मूव करते जाते हो। जल्दी अगर उस दिन हो गया है तो नेक्स्ट डे का भी उठा लेते हो। इस तरह से आप तैयार करते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के बनाए आप कभी काम ना करें। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस है ना बच्चा, आप कहोगे सिलेबस में जो है वो तो पढ़ते ही जाएंगे, नहीं। दैट इज़ द होल ग्लोब। ये आपको करना है, इसे मुट्ठी में मुझे करना है। उसके लिए उस सिलेबस का प्रिंट आउट 11, 12 दोनों का निकाल के आप अपने वॉल पे लगा लीजिए, आप अपने स्टडी टेबल पर भी उसे लगा लीजिए। चाहिए तो एक अपने बैग में भी डाल लीजिए कि नाउ आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। उसमें ना आप अलग अलग निशान अलग अलग कलर से लगा सकते हो। जैसे ग्रीन इज completed, blue is one revision also completed, yellow is flashcards and this sticky notes also prepared। तो इस तरह से आपको उसी पेज में आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी और एवरी टाइम वो आपको बूस्टअप करेगा कि कम ऑन, ये आपका हुआ है, ये आपका नहीं हुआ है, इसे करो, इसे उठा के अपने टाइम टेबल में यहाँ डालो, यहाँ से उठा के वहाँ डालो, और वो भी आपको गाइड करेगा। आपका सिलेबस आपको डराएगा नहीं, वो भी आपको गाइड करेगा कि मुझे आप इस तरह से एडजस्ट करो। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज योर पैशन, your confidence, your passion, your confidence in yourself, your confidence in your teacher। आपके टीचर में आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो वो डाउट आप में रिफ्लेक्ट करेगा। यू विल नो कि अरे मेरी तैयारी भी ठीक नहीं हो रही होगी। तो सिलेक्ट योर गाइड केयरफुली। उसके बाद आपके NCERT पे आ जाइए, उससे ड्यू रिस्पेक्ट पूरे एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम को कैसे पढ़ना है उसे देखिए। डू इट। One more important thing is notes। वो नोट्स जो आपने अपने हाथ से नहीं लिखे हो, वो आपके ब्रेन में भी नहीं लिखाते हैं।
इफ नॉट द कंप्लीट सेंटेंस, पॉइंट्स 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 लिखते चलिए। और 1 सब्जेक्ट 1 कॉपी, मिक्सअप मत कीजिए, नो रफ वर्क, डोंट चेंज द कॉपी। दिस विल हेल्प यू इमेंसली। इस तरह से पढ़िए, कौन रोक सकता है आपको। एक और बात जो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा करती है, दैट इज़ द अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स। दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल एट दिस एज, बट रिमेंबर बच्चा कि दिस अट्रैक्शन विल ऑल्सो गो। आपने किसी को देखा है कि वहीं कॉलेज वाले अट्रैक्शन लेके इट मीन्स इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग और सो इट मे बी ऐसे भी होते हैं, लेकिन द थिंग इज़ लेट दिस थिंग्स वेट। अगर अभी इसमें आप फंस जाते हो तो आप रुक जाओगे, आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, जो आपका एम आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, दूसरे आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ आप खुद स्पॉइल करके रख लोगे। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। लेट एवरीथिंग टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। लेट एवरीथिंग बी ब्यूटिफुल। विश यू ऑल द बेस्ट। करके ही रहेंगे बच्चे।